Hello students, welcome to the online classes of Vidyabhavan School. Today's subject it is your social studies on that part, geography. Unit geography it is, and I have taken your first chapter that it is the resource. The topic of your first chapter that is the resource. So students, in the morning when you go to your school, almost all the naughty students what they do? They take the chalks and they start to play with the help of chalk, duster and all. So once when I saw that the students they are playing with the chalk, I just requested them, don't waste the chalks, they are the resource, they are very useful resources, why you are wasting them? The student all of a sudden he said, ma'am, how a chalk is a resource? So the same type of question may arise in your mind also. जैसे कि एक दिन सुबह सुबह मैं स्कूल गई तो बच्चे खेल रहे थे चौक के साथ, तो मैंने कहा बच्चों ये रिसोर्स पड़ोस हम जो कहते हैं उस पड़ोस को फ्रेंच लैंग्वेज में क्या कहते हैं? ऐसे वेस्ट नहीं किया जाता है, तो इसका जो पर्पस है वो पर्पस के लिए ये चीज़ें बनी है, आपके खेलने के लिए नहीं बनी है। तो बच्चों ने बोला मैम तो रिसोर्स क्या होता है? तो ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट ऑल बच्चों के माइंड में जैसे अराइज हुआ है, तो उसके बारे में हम डिटेल में पढ़ने के लिए ही वी हैव चूजन दिस टॉपिक एंड दिस इज मीन फॉर यू इन योर सिलेबस इट इज एडेड। तो इसके बारे में जो रिसोर्सेस है उनके बारे में आप जानकारी हासिल करें, इसीलिए दिस टॉपिक इट हैज़ बीन इंक्लूडेड। जैसे कि रिसोर्स क्या होते हैं, जो छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी चीज़ तक, छोटी से छोटी चीज़ से लेके बड़ी से बड़ी चीज़ तक होती है, जो उन सबको हम क्या कहते हैं? रिसोर्स। तो उसकी क्वालिटीज़ क्या है, डेफिनेशन क्या है, वो कैसे यूजफुल है, वो कैसे बनती है, हाउ दे आर प्रोड्यूस्ड, हाउ दे आर यूजफुल फॉर द सोसाइटी, कम्युनिटी, फॉर अ सिंगल पर्सन or the students or different parts of the society, how they are useful, why they are useful, what are the things that the things go through to become a resource, ये सब के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। So before starting anything, let us clear the definition or the meaning of resource। सबसे पहले यहाँ पे ऑलरेडी मैंने लिखा है anything that can be used, anything that can be used to satisfy a need, it is called as resource। resource वो सारी चीजें होती है जो सारी नीड्स, जो ह्यूमन नीड्स है, ह्यूमन नीड्स को यहाँ पे सेटिस्फाई करता है, उन सबको हम क्या कहते हैं? यस एग्जैक्टली, रिसोर्स मीन्स द थिंग्स whichever, for example, during the class you feel thirsty, what you do? You take permission from your teacher that may I drink water? Ma'am says yes, because there you got a need. What the need is? You want to drink the water, that is your need, means you are thirsty at that time, your need it is the water. So that time this water it acts as a resource, because why? It quenches your thirst। उस टाइम में जो पानी है वही आपकी प्यास बुझाती है। पानी के बदले में मैं कुछ और चीज दूं, आपको बोलूं कि बिस्किट्स खा लो, चॉकलेट्स खा लो और अपनी प्यास बुझा लो, दैट इज नॉट एट दैट टाइम परफेक्टली कॉल्ड एज अ रिसोर्स। जब नीड होता है, जो नीड होता है उस टाइम में आप जिस चीज को पीते हो, आप जैसे पानी आपने पी लिया, आपने क्या किया? यू क्वेंच योर थर्स्ट, आपने अपनी प्यास को बुझा दिया। सो नीड अराइजेस, जैसे भूख लगती है तो आपको खाना चाहिए, जैसे आपको लिखना हो तो यू नीड अ पेन, बुक्स, notebooks, textbooks, along with that the written things whatever you want to copy, those all things you need। so whenever anything, so surrounding में आप अगर एक मैं क्लासरूम में बोलूँ कि क्लासरूम में आपके लिए क्या क्या रिसोर्सेस है, तो you will get a long list of the resource, chalk, duster, blackboard, we can say the furniture on which you are sitting, your notebooks, your textbooks, your pens, pencils, eraser, sharpener, bags, water bottle, lunch box, these are all kept in the classroom and these are all the resources which are just you can see in your classroom। इसके साथ साथ आप घर में भी रहते हो, तो घर में भी आप बहुत सारी चीजें देखते हो, छोटी से छोटी एक पिन से लेके पूरा घर तक आप देखते हो, तो वो भी एक रिसोर्स है।
जो लैंड जिस पे घर बना हुआ है वो भी रिसोर्स है, जो लैंड के आसपास एनवायरनमेंट जो है वो भी एक रिसोर्स है। सो फ्रॉम अ स्मॉल थिंग टू अ बिग थिंग which satisfies the human need, because human need आप देखते हो डे बाय डे दे आर गोइंग ऑन चेंजिंग, जैसे जैसे चेंज होते जा रहे हैं ह्यूमन नीड्स, जैसे जैसे उसमें डेवलपमेंट होते जा रहा है उसके अकॉर्डिंग है ह्यूमन क्या कर रहा है, बहुत सारी चीजें इन्वेंट कर रहा है, इन्वेंट करके दे आर ऑल्सो मेड एज द रिसोर्स। सो एनीथिंग, जो भी चीजें हैं सराउंडिंग में, जो भी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको क्लासरूम का एग्जांपल दिया, जैसे आपको सोसाइटी का एग्जांपल दिया, एनीथिंग जस्ट सराउंडेड टू यू विच सैटिस्फाई योर नीड, जो आपके जरूरतों को यहाँ पे पूरी करता है, उन सब चीजों को व्हाट वी कॉल देम एज अ रिसोर्स। सो कीप इट इन योर माइंड एंड अनदर डेफिनेशन इट इज रिसोर्स रेफर्स टू ऑल द मटेरियल्स, ऑल मटेरियल्स, सारी चीजें विच आर अवेलेबल इन अ एनवायरनमेंट, हमारे परिसर में ये सारी चीजें, वातावरण में ये सारी चीजें मिलती है, विच हेल्प अस टू सेटिस्फाई, जो हमारे नीड्स को यहाँ पे सेटिस्फाई करता है। सो विच हेल्प्स अस टू सेटिस्फाई आवर नीड्स एंड वांट्स, जो ह्यूमन वांट्स है उन सबको जो सेटिस्फाई करता है, उन सारी चीजों को हम क्या कहते हैं, रिसोर्स कहते हैं। ठीक है, देन रिसोर्स ऐसे ही है क्या, उसकी कुछ क्वालिटीज भी है कि हम किस किस चीज को रिसोर्स बोलते हैं, तो वो क्वालिटीज भी हम वन बाय वन वी आर गोइंग टू रीड हियर। सो हियर इट इज अ लिस्ट ऑफ द क्वालिटीज व्हिच अ रिसोर्स शुड बेयर। सो ऑल द रिसोर्स, द फर्स्ट पॉइंट इट इज ऑल द रिसोर्स हैव सम वैल्यू, रिसोर्सेज शुड हैव द वैल्यू। अब आप बोलोगे मैम हम तो पानी पीते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, एयर वी ब्रीथ इट इज ऑल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट, बट ये सारी चीजें हम कह सकते हैं दे आर नॉट हैविंग एनी वैल्यू, बट इनको हम बोलते हैं अनमोल, विच आर योर मोर एक्सपेंसिव देन द वैल्यू, वी आर नॉट गिविंग योर सम कमर्शियल वैल्यू फॉर दिस, कमर्शियल वैल्यू नहीं है, इकोनॉमिक वैल्यू नहीं है, बट फिर भी उन चीजों की एक वैल्यू होती है विदाउट विच वी कैन नॉट लिव। फ्यू थिंग्स, दोज थिंग्स आर ऑल्सो अवेलेबल इन द नेचर, और उनको भी हम एज अ रिसोर्स कॉल करते हैं। सो वैल्यू मीन्स नॉट ओनली द कमर्शियल और इकोनॉमिक वैल्यू, द वर्थ ऑल्सो, हाउ इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ, उसके आधार पर हम उसको बोलते हैं कि इट शुड हैव सम वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल इफ यू वॉन्ट टू राइट समथिंग, you need a pen, so if you go to shop and ask a pen or request a shopkeeper for a pen, he will also charge you, he will say please give me 5 rupees and take this pen। so जहाँ पे आप वर्थ पे करते हो, जहाँ पे एक वर्थ वहां पे पे करते हो, उसको बोलते हैं कमर्शियल वैल्यू, दैट वैल्यू इट इज कॉल्ड एज कमर्शियल वैल्यू। सो इफ यू आर पेइंग समथिंग, if it is having its economic worth, then it has the commercial value। तो यहाँ पे हर एक रिसोर्स के लिए जरूरी नहीं है कि कमर्शियल वैल्यू ही हो। अंडरस्टूड आई थिंक। सो इफ यू गॉट एनी डाउट यू कैन आस्क, there the number is there, you can personally call or you can come to school and meet and clear each and every doubt whenever you get. Students, keep it in your mind, you have to work always, whatever the notes it has been given, you have to copy it in your notebook. So let us move towards the second point. This concept it has been cleared, I think. All the resource should have value. Usability or utility, it gives the resource its वैल्यू। अब एक वैल्यू है, एक रिसोर्स का वैल्यू है, तो वह वैल्यू किस आधार पर यहाँ पे हम करते हैं, एक चीज की वैल्यू किस आधार पर हम पे करते हैं। सो दैट इज इट्स यूजेबिलिटी और यूटिलिटी। अब यूटिलिटी क्या होता है, वो यूजेबिलिटी एनीथिंग, उसकी यूज होने की एबिलिटी क्या है। सो ऑन द बेसिस ऑफ दैट व्हाट वी डू, वे पुट अ वैल्यू फॉर अ रिसोर्स। जैसे कि एक आप पेन लेते हो, पेन 5 रुपीज से लेके 50 रुपीज 500 रुपीज तक है, बट उसमें कुछ चेंजेस है यूज उसमें। सो कुछ होती है तो इंक स्प्रेड हो जाती है, कुछ ऐसे होते हैं कि वो जेल सिस्टम होता है,
वो भी स्प्रेड हो जाता है। कुछ ऐसे होते हैं इंक्स जो स्प्रेड नहीं होते हैं, वाटरप्रूफ होते हैं। अलग अलग पेन, जैसे स्टाइलिश पेन आप लेने जाओगे तो उसके जो दिखावे के आधार पर उसका वैल्यू भी ज़्यादा होते जाती है। जैसे कि हम नॉर्मल वाटर पीते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, आप मटके में से लेके नॉर्मली पी लेते हो। वो का वो मिनरल वाटर आपको जहाँ पे भी चाहिए, खड़े खड़े पानी की ज़रूरत हो तो उसको हम 10 या 15 रुपीज़ पे करके मिनरल वाटर की बॉटल्स हम लेते हैं। सो जिस पानी की जिस वे में यूज़ होती है उसके आधार पर हम उसका वैल्यूएशन करते हैं। सो द वैल्यूएशन इट डिपेंड्स ऑन द यूजेबिलिटी और यूटिलिटी ऑफ अ रिसोर्स और अ थिंग। नेक्स्ट, वैल्यू मीन्स वर्थ। इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। सो वैल्यू मीन्स द वर्थ, द कमर्शियल वर्थ। Then time and technology are two important factors that can change substance into resource. अब बहुत सारी ऐसी चीजें होती है, आप देखते हो मिनरल्स जो है, आप सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम आज कह सकते हैं वैल्यूएबल जो है वो मेटल्स में कौन सा है? गोल्ड। ये गोल्ड जो है ये प्योर फॉर्म में थोड़ी ना हमको मिलता है। नो, इट इज नॉट इन अ मेटेलिक फॉर्म। इसको हम एक्सट्रैक्ट करते हैं। कहां से एक्सट्रैक्ट करते हैं? फ्रॉम अ एनवायरनमेंट। इसको एनवायरनमेंट से एक्सट्रैक्ट करते हैं। वी एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द एनवायरनमेंट इन द फॉर्म ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स के फॉर्म में इसको लैंड से हम निकालते हैं। जैसे आपने ट्रेन में देखा ही होगा, अपने बोगीज में आपने बोला मैम ये मिट्टी क्यों लेके जा रहे हो? वंस आई एक्सप्लेन इन द क्लास ऑल्सो, दिस इज नॉट द सॉइल, दिस इज एक्चुअली अ मिनरल। कोई मिनरल हो सकता है बेटा, इसमें कोई मेटल कंटेंट हो सकता है जिसको मेटलर्जी करके यहाँ पे क्या करते हैं, उसको उस मिनरल्स में से एक्सट्रैक्ट करते हैं। सो इट इज नॉट इन प्योर फॉर्म, इट हैज बीन एक्सट्रैक्टेड। मेटलर्जी करके यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो वो मेटलर्जी क्या होता है? एक्चुअली द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी अर्लियर ये गोल्ड था ही नहीं, धीरे धीरे उनको पता चला कि ये इन द फॉर्म ऑफ सॉइल है, इसके अंदर मेटल है। तो पहले इसका कोई यूज नहीं था, बट टाइम के गैप के अकॉर्डिंग जब हमको पता चला कि इट कैन टेक अ फॉर्म ऑफ अ मेटल और ये मेटल बहुत वैल्यूएबल है, ये सारी चीजें हमको ऑन द बेसिस ऑफ द टाइम हमको पता चला ह्यूमन बीइंग को। लेटर ऑन उसको टेक्नोलॉजी की यूज करके उसको एक फॉर्म दिया, मेटल फॉर्म में उनको दिया जो आज बहुत वैल्यूएबल है। सो उसका वैल्यूएशन भी उन्होंने किया। सो दैट इज कॉल्ड एज अ रिसोर्स। अर्लियर इन द फॉर्म ऑफ मिनरल, इफ इट इज फ्रीली अवेलेबल फ्रॉम द लैंड। अंडरस्टूड? सो नेक्स्ट कम्स ideas, knowledge, inventions and discoveries creates more and more resource. Ideas, knowledge, inventions and discoveries. Earlier आपने देखा फायर का इन्वेंशन था ही नहीं। ओल्ड स्टोन एज मैन ने उसको इन्वेंट किया। All of a sudden he understood some energy is there in the nature which is in the form of energy, in the form of fire energy. So when they understood how they can use, slowly they started making the use of it. तो सबसे पहले उसका किस चीज के लिए यूज करते थे? To keep themselves safe from the wild animals. So they used fire to keep themselves warm. पहले तो खुद को गर्म रखने के लिए, बिकॉज ठंडी के टाइम पे उस टाइम में क्लॉथ्स ज़्यादा थे ही नहीं किसी टाइप के, just to keep themselves warm. In the winter season they used the fire, they lit the fire. उसके साथ साथ धीरे धीरे क्या हुआ बीच में, they were eating raw meat. Once what happened, all of a sudden the meat fall into the fire. तो उसको निकाल के जब उन्होंने टेस्ट किया, खाया, तो it was quite tasty. Then they understood at least we can use the fire to roast our meat. धीरे धीरे ऐसे ही फूड कुक करने के लिए और वेरियस यूजेस के लिए इस फायर का यूज होने लगा. सो ये आइडियाज एंड डिस्कवरीज किसके माइंड में आने लगे? इन द माइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग. सो द आइडिया, द नॉलेज
or the discoveries I can say here, or the inventions, so you know so many things. At your home you can see the watch, the refrigerator, the television, the mobile phones, and so many things, whatever you see, the fan, the furnitures. Earlier these all things they were not there, they have been invented by many scientists. So the ideas, जो knowledge, जो inventions, जो discoveries है, पहले जैसे मैं कह सकती हूँ एक पेड़ है, नॉर्मल पेड़ है, it is also very useful for us. सूख गया, गिर गया, they were not knowing how to use the tree here, तो ये आग जलाने के ही काम में लेते थे. फिर व्हील का इन्वेंशन हुआ तो उन्होंने व्हील का यूज लेना शुरू किया. So when they started making the use of wheel, along with that they understood this piece of wood we can use for various other purposes also. So they might have invented the tables, the chairs and different types of furniture. slowly इस log से, जो wood का जो log था उसके हेल्प से उन्होंने खूब सारी चीजें यहाँ पे इन्वेंट की. So only we can say so many things. पहले जब ये log पड़ा था, just it was an useless thing, but later on they understood it can be given a different shapes, and when the different shapes we give to that, it will be a resource for us. तो यहाँ पे the idea, the knowledge और जो discoveries है, कुछ useless चीज़ों को जो surrounding में हमको मिलते हैं, जो environment में हमको मिलते हैं, because of these things become the useful resource. So anything that can be used to satisfy a need is a resource. The concept is clear, I think. एक वस्तु को हम रिसोर्स कब कहते हैं? जब उसकी कोई एक एक्चुअल वैल्यू हो, उसके साथ साथ वो हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करता हो, उसके साथ साथ उसकी यूजेबिलिटी हो. ओनली एट दैट टाइम वी कॉल दैट थिंग एज अ रिसोर्स. तो चॉक वी कैन सी, एक इलिटरेट को आप घर जाओगे, किसी भी इंसान को आप चॉक दे दोगे तो इज इट यूजफुल फॉर दैट पर्सन? आई डोंट थिंक सो. बट एक टीचर के लिए आप अगर एक चॉक का पीस दोगे, एक पेन दोगे, कुछ बुक्स दोगे, तो उसके यूजेस वो बहुत अच्छी तरह से उसका यूज वो कर सकता है. सो ऑलवेज व्हेनेवर एनीथिंग दैट satisfies a need is called as resource, it should have the value, may be commercial or may not be. So always keep it in mind. अगर मैं बोलूँ कि all the resources have the commercial worth, commercial value or economic worth, then keep it in mind. If I ask you true or false, it will be false, because all the resources, they don't have economic worth. Few things which are freely available in nature and we enjoy them. For example, the oxygen present in the nature. So many trees also nowadays they are selling it, but still we can say along with that the mothers, दादीमास नुस्खे what we call as, वो सारी चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो रिलेशंस है, जो लव अफेक्शन है, ये सारी चीज़ें इनकी ये अनमोल है, इनकी कोई वैल्यू वर्थ नहीं होती है, बट स्टिल दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स फॉर अस. सो I think you understood the meaning of these things, that what is the resource, what are the qualities it should have. So अगर कोई चीज़ ऐसी होती है जिसका कोई यूज नहीं होता है, तो how it becomes a resource? With the help of ideas, knowledge, inventions and discoveries, what we do, we take that thing and make the use of that. So when we make the changes in that thing and we use it, that also thing is called as resource. So the concept is clear, I think. So after this let us move towards types of resource. अब आप बोलोगे मैम ये सारी चीजें तो हो गई, अब कैसे कैटेगराइज करेंगे हम कि फ्रीली अवेलेबल कौन से है, नेचर से अवेलेबल कौन से है, उसकी वैल्यू क्या है, वर्थ क्या है, ये सारी चीज हम कैसे कहाँ से पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ रिसोर्सेस में. सो ड्यूरिंग टाइप्स ऑफ रिसोर्स, ड्यूरिंग दिस स्टडी of the different types of resource, we will understand how important they are. So the types of resources, they are three types, that is, one is the natural resource,
human made resource and human resource. The human himself is a very important resource of this environment, the nature, the planet Earth we can say, because if it is not there, there is no use of these two resources. जैसे पेड़ पौधे पानी सब है, ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, तो वो किसके लिए है? Why do we study? Why do we know? Only we are the very important thing, important resource of this environment, because here we can say satisfy. Whose needs these things are satisfying? The human's needs. So who is paying value for this? The human being is paying the value for this. Who is making the changes? Who is making the changes in these resources? The human himself is making the changes with the help of ideas, knowledge, inventions and discoveries. With this, he is creating so many things as a resource. So we can say the most important resource, it is the human himself. So three kinds of resources है, उसमें सबसे पहले है natural, जो हमें प्रकृति से easily available होते हैं. Second, human made resource, जो यहाँ पे with the help of ideas, knowledge, invention, discoveries का करके जो changes किया है यहाँ पे environment में, और एक रिसोर्स को एक वैल्यू दी है या फिर वैल्यू बढ़ाई है, उसको हम बोलते हैं ह्यूमन मेड. एंड थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्स, द ह्यूमन हिमसेल्फ इज अ रिसोर्स. तो इन तीनों के बारे में वन बाय वन इन डिटेल वी विल नो इन द नेक्स्ट क्लास. सो स्टूडेंट्स, copy this notes. I have sent you the PDF also. Copy it in your geography notebook and maintain it regularly. Stay home, stay safe. Thank you. Have a nice day.